Hallelujah. Somebody hallelujah. It's a great day today in the history of the world. आज एक बहुत महान दिन है संसार के इतिहास में. It is being celebrated as a Father's Day. आज फादर्स डे मनाया जा रहा है. And many people are sending their good wishes or putting their status on the Facebook, on the stories. और बहुत से लोग आज स्टोरी डाल रहे हैं, स्टेटसेस डाल रहे हैं फादर्स को ऑनर करने के लिए. I also put my status this morning. मैंने भी अपना स्टेटस आज डाला है. And I want to share the verse which I put this morning. और जो वचन आज मैंने शेयर किया है उसके बारे में कुछ बोलना मांगता हूँ. The Bible says, वचन कहता है, the father of the righteous will greatly rejoice. धर्मी का पिता बहुत मगन होता है और बुद्धिमान का जन्माने वाला उसके कारण आनंदित होता है. Let me read it in English. The father of the righteous will greatly rejoice. The father of the righteous greatly rejoices. Yeah. Okay. He who fathers a wise son will be बाइबल से लिखा हुआ है कि धर्मी का पिता बहुत मगन होता है और बुद्धिमान का जन्माने वाला उसके कारण आनंदित होता है. I have a question here. मेरा एक सवाल है यहाँ पर. As the Bible says here, वचन बोलता है यहाँ, how about you? How are you taking care of your children? पिता जो है वो अपने बच्चों की परवरिश किस प्रकार से कर रहे हैं? The word of God says here, वचन कहता है, the father of the righteous will greatly rejoice. धर्मी का जो पिता है वो मगन होगा, आनंद मनाएगा. He who fathers a wise son जो एक बुद्धिमान बच्चा उत्पन्न करता है will be glad in him. वो उसमें आनंदित होगा. You know, people read these words. लोग इन वचनों को पढ़ते हैं. As I'm speaking and people are watching me on Facebook, जैसे मुझे लोग देख रहे हैं इस समय फेसबुक पे. when I put this status जब मैंने on my स्टेटस story डाला, this morning, जब मैंने स्टेटस डाला आज, one of the neighbors of this colony, मेरा जो बॉडी है इस कॉलोनी का, he has a good business. वो अच्छा सुनते हैं. He has a good business. उसका एक अच्छा बिजनेस है. He immediately liked my status. उसने उसी वक्त स्टेटस को लाइक किया. He's just sitting close to the school. स्कूल के बिल्कुल पास ही रहता है. And now I have an opportunity to talk to him. और अब मेरे पास एक मौका है उससे बात करने का. You understand what I'm saying? आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ? The moment I put my status, जैसे ही मैंने वो स्टेटस डाला, in my status I put this verse. और मैंने स्टेटस में ये आयत डाली. I put it in Hindi and in English. मैंने हिंदी में भी और इंग्लिश में दोनों भाषाओं में ये स्टेटस डाला. My neighbor was the first person to like it. और मेरा जो पड़ोसी था वो सबसे पहले उसने लाइक मारा. He's a rich businessman. एक बहुत धनी बिजनेसमैन है. Now I have an opportunity to talk to him. और अब मेरे पास एक मौका है उसके साथ बात करने So का. I wish all the fathers. तो आज मैं सारे जितने भी पिता यहाँ पे बैठे हैं उनका स्वागत करता हूँ, ग्रीट करता हूँ. And I want to encourage you और मैं आपको उत्साह देना चाहता हूँ that please try your best अपनी पूरी कोशिश करें that you rear your children ताकि अपने बच्चों की परवरिश in the fear of the Lord. परमेश्वर के भय में. I have done it मैंने किया and I see the result. और आज मुझे इसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है. Why? Because my children, they honor me, they respect me. क्योंकि आज मेरे बच्चे मेरा आदर करते हैं, मुझे मानते हैं. Especially my son. खास करके मेरा बेटा. Of course, my daughters too. मेरी बेटी भी. So I want to encourage all the parents wherever they are. आज मैं पेरेंट्स को, माता पिता को उत्साह देना मांगता हूँ जहाँ पर भी हैं, जहाँ कहीं भी हैं. That try to bring up your children in the fear of the Lord. अपने बच्चों को परमेश्वर के भय में बढ़ाएं. Hallelujah. हालेलुया. Fathers, don't give up. पिता, हाथ ना खड़े करो. Try your best. अपनी पूरी कोशिश करो, पूरा यत्न करो. And then they will bring good results. और फिर बच्चे अपने समय पे अच्छा फल देंगे. My leader who was leading the church, मेरा लीडर जो चर्च की अगुवाई कर रहा था, he said that if there is any testimony, उसने कहा कि यदि कोई गवाही है, I wanted to give a testimony about my son. मैं गवाही देना मांगता था अपने बेटे के बारे में. You know, he's working very hard in the US. वो बहुत मेहनत कर रहा है, But he never forgets the special days. लेकिन ये जो खास दिन होते हैं वो कभी नहीं भूलता. He's just like his mother. वो अपनी माँ की तरह है.
I forget good days, bad मैं days. भूल जाता हूँ, अच्छे दिन भी भूल जाता हूँ, बुरे दिन भी भूल जाता हूँ, But he doesn't. लेकिन वो नहीं भूलता। At the Father's Day, फादर्स डे पे he just sent me a beautiful cash gift. उसने कुछ कैश गिफ्ट भेजा मुझे, And you know when you get a cash gift, और जब कैश का गिफ्ट मिलता है you feel very happy. तो मैं बड़ी खुशी होती है। I was going through some troublesome time, मुझे कुछ थोड़ा सा औखा टाइम जा रहा था, and while I was thinking how to make some payments, और जब मैं सोच रहा था कि ये पेमेंट ये कैसे अदायगी होगी, within 2-3 minutes I got this message. तो 3 मिनट के अंदर अंदर उसका मैसेज आ गया। Father, I'm sending some money for the church, पापा मैं कुछ पैसे भेज रहा हूँ चर्च some के money लिए, for someone, और कुछ पैसा किसी और के लिए, but I'm also sending $100 for you to enjoy your Father's Day. लेकिन कुछ पैसा उसमें से मैं आपके लिए भी भेज रहा हूँ कि आप फादर्स डे को एंजॉय कर सको। Hallelujah. हालेलुया। So I want to say, तो मैं कहना चाहता हूँ, till death, मृत्यु तक, even when your hair are completely white, जब आपके बाल सारे चिट्टे हो जाएंगे, you still have a chance to love your children and show your concern towards आपके them. पास तब तक मौका है अपने बच्चों को प्यार दिखाने का, प्यार देने का। Say hallelujah. हालेलुया। It's a great day. ये एक बहुत बड़ा दिन है। Okay, do you remember what Madam taught during the last 4-5 weeks? क्या आपको याद है कि मैडम ने आपको क्या सिखाया पिछले कुछ हफ्तों में? Can somebody repeat for that? क्या कोई उनको दोहरा सकता है? Okay, I think that you all remember. मैं ये मानता हूँ कि आपको सबको याद है। She was teaching about faith. वो विश्वास के बारे में आपको सिखा रहे थे। If you are not very sure what she spoke, यदि आपको नहीं समझ में आया कि उन्होंने क्या सिखाया, I request you, मैं आपसे विनती करता हूँ, go online or on YouTube, आप YouTube खोल के देख सकते हैं, open our channel, हमारे चैनल को ECI, ECI God of Peace, गॉड ऑफ पीस, or you can write my name also, Bishop Arun Kumar या Das. आप मेरा नाम भी एंटर कर सकते हैं। It's a little lengthy message, लंबे हैं, but I'm very sure लेकिन मैं विश्वास करता हूँ, if you speak upon those messages, आप उन मैसेजेस को अगर ध्यान से सुनेंगे you are going to be blessed. तो जरूर आपको बरकत मिलेगी। Yesterday one sister called me, I don't want to take her name. कल एक बहन ने मुझे कॉल किया, मैं उसका नाम नहीं लेना मांगता। She said that I want to listen to the message which Madam gave it in the church last week. उसने ये कहा कि जो पिछले हफ्तों में जो मैसेज दिए हैं, संदेश दिए हैं, So क्या मैं सुन सकती हूँ उनको दोबारा? I want to request my brother who records these messages and puts on the YouTube. तो मैं विनती करूंगा अपने भाई से जो कि रिकॉर्ड करके उनको YouTube पे चढ़ा देता है। Last Sunday's message also should be on the. पिछले इतवार का भी संदेश जो है उसको आप YouTube पे लगा दें। Say everybody hallelujah. Are you able to understand what Madam is saying? Oh wow. I'm speaking English. I'm also speaking English. Wow, Madam. Very good. Say that. ये कितनी अच्छी बात है कि मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूँ और शब्द जो है वो जवाब भी अंग्रेजी में दे रहे हैं। कितनी खुशी की बात है। So I'm glad that my church is progressing. तो मुझे खुशी है कि मेरा चर्च कलीसिया जो है तरक्की कर रही है। You know, Madam spoke on the faith. मैडम ने फेथ के ऊपर, I also want to continue a little bit about faith. मैं भी उसी विश्वास को थोड़ा सा और उसके बारे में बोलना चाहता I want you to open your Bibles from the 2 Timothy chapter 1. हूँ। बाइबल खोले, वचन खोले, दूसरा तिमोथियस, 2 Timothy chapter 1. दूसरा तिमोथियस पहला बाब, We'll read from verse 1 to 7. दूसरा तिमोथियस पहला बाब 1 से लेकर 7 तक। I'll request Rajni and someone also come forward and read it very carefully. मैं विनती करता हूँ कि कोई आगे आकर उसको पढ़ दे। This is very important passage of the Bible. ये बहुत महत्वपूर्ण हवाला है बाइबल का। You know, the Bible is full of miracles. बाइबल जो है वो चमत्कारों से भरी हुई है। And when I open my Bible, और जब मैं बाइबल को खोलता हूँ, I find miracles one after another in the Bible. तो मैं देखता हूँ कि बाइबल में एक के बाद एक चमत्कार लिखे हुए। If you read it carefully, यदि आप इसको ध्यान से पढ़ें, you will find that Bible is full of miracles. आप देखेंगे कि बाइबल में कितने चमत्कार हैं। And Jesus performed millions of miracles. और यीशु मसीह ने हजारों लाखों करिश्मे किए। Say millions and millions. Say लाखों, करोड़ों, अरबों की गिनती में। Yes. If you say that this pastor is bragging, अगर आप सोचेंगे कि पास्टर एमी बोल रहा है, and you may say that, oh, pastor doesn't know what he's saying. शायद आप ये भी सोचें कि पास्टर को पता ही नहीं वो बोल क्या रहा है। Jesus
performed यीशु मसीह so many ने miracles, इतने करिश्मे किए, so many miracles, इतने करिश्मे किए that the Bible says, कि वचन कहता है if it is recorded in the books, कि यदि उन सब को रिकॉर्ड किया जाए, उन सब का बयान किया जाए, there will be no books in the Bible which could collect and retain his miracles. तो बाइबल की किताबें कम पड़ जाएंगी। You want to read? क्या आप पढ़ना चाहते हैं? Yeah, I'm telling the truth. मैं सच बोल रहा हूँ। People probably don't have knowledge. शायद लोगों के पास ये ज्ञान नहीं है। Jesus performed miracles after miracles, miracles after यीशु miracles. मसीह ने करिश्मे के बाद करिश्मे, करिश्मे के बाद करिश्मे किए। We do not know about that. शायद हमें ये बात पता नहीं है। Let's open the Gospel of John. यूहन्ना की इंजील, When we come to the last chapter of 21 chapter of Gospel of John, जब हम आखिरी अध्याय में आते हैं, यूहन्ना की इंजील आखिरी अध्याय, yes, Jesus did two things. यीशु मसीह ने दो काम किए। He did miracles. उन्होंने करिश्मे किए, He performed miracles, उन्होंने अद्भुत काम किए, and then he gave messages and he preached the word of God. और स्वर्ग के राज्य के बारे में बताते गए। Read this verse, आप पढ़ें chapter 21, 21वां अध्याय, 25 verse, 21 अध्याय, verse 25. 25 आयत। और भी बहुत से काम हैं। Now, my friends, listen to it very carefully. मेरे मित्रों, इसको ध्यान से सुनें। I'm saying the Bible is full of miracles, मैं ये कह रहा हूँ कि बाइबल करिश्मों से भरी हुई है, but I'm not talking only about miracles. लेकिन मैं सिर्फ करिश्मों की बात नहीं कर रहा। We'll talk something else which should take us in more depth of our spiritual मैं कुछ ऐसी बात कर रहा हूँ जो हमें और भी डूंघाई में, गहराई में ले जाएगी। in our spiritual walk. हमारी जो आत्मिक चलन है, But we need to understand the Bible is full of miracles, लेकिन हम ये समझें कि बाइबल जो है वो चमत्कारों से भरी हुई है, which were done by the Lord Jesus जो कि Christ. यीशु मसीह ने किए। And today it is done by His servants. आज उसके जो चुने हुए सेवक हैं, उनके द्वारा वो किए जा रहे हैं। Again, I want to say one thing. लेकिन मैं एक बात कहना मांगता हूँ, I don't want to focus fully on miracles. लेकिन मैं केवल करिश्मों के ऊपर ही ध्यान नहीं देना मांगता। If you want to see a miracle, यदि आप करिश्मा देखना मांगते हैं, you simply need to open your Bible. तो आप बाइबल खोलें, You need to read it carefully, ध्यान से पढ़ें and you need to receive it. और इसको ग्रहण करें, कबूल करें, You need to have faith in it, विश्वास करें, and then what will happen? और फिर क्या होगा? A miracle will start taking place in your वो life. करिश्मा आपके जीवन में खुद ब खुद होना शुरू हो जाएगा। Read this verse. ये आयत को पढ़ें, Yeah, read it in Hindi and Punjabi. उसको हिंदी पंजाबी में पढ़ते हैं। और भी बहुत से काम हैं। Yes, there are so many miracles which Jesus did it. Oh, and so many things He did it. Yes. बहुत से काम है जो यीशु ने किए। Yes. यदि वे एक एक करके लिखे जाते Yeah, thank you. तो मैं समझता हूँ कि पुस्तकें जो लिखी जाती वे संसार में भी ना समाती। Now, what does it say? यहाँ क्या लिखा है? It's written that Jesus did so many miracles. He did so much, यहाँ लिखा है कि यीशु मसीह ने बेअंत करिश्मे किए and He did so many other things. और इसके अलावा भी बहुत कुछ किया। Read it in your Bible very carefully. अपने बाइबल में ध्यान लगा के इसको पढ़ें, Read this verse very carefully. इस आयत को बड़े ध्यान से पढ़ें, Read it. पढ़ें, We don't read it. पढ़ें इसको। What is written here? क्या लिखा है यहाँ पर? He said, now there are also many other things that Jesus did. यहाँ लिखा है कि और भी बहुत से काम यीशु ने किए। But every one of them to be written, अगर हम उन सब का बयान करें, I suppose that the word itself could not contain the books that could be written. तो इस पुस्तकें जो लिखी जाती हैं संसार में भी ना समाए। Alicia, you need to know about it. कलीसिया, आपको ये बात समझनी पड़ेगी। Jesus did so many other things. यीशु मसीह ने बहुत कुछ किया और भी कुछ किया। What this verse says, ये आयत क्या कह रही है? that the books which were written कि जो किताबें लिखी गई हैं, itself could not contain that would be written. ये बातें जो यीशु मसीह ने की उन किताबों में भी नहीं समाती। Hold on, madam, for 1 minute. मैं ये कह रहा कि यीशु मसीह ने लखा करोड़ा अरबा काम कीते अजूबे कीते ये साइड के अनुसार लिखा गया है कि जे लिखे जाते ते किताबां ना मिलदियां जेड़ियां संसार दे विच रह सकदे हैं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ उस यीशु मसीह का प्रचार करते We हैं। are going to preach about the faith today. अब विश्वास के बारे में बात करेंगे। Remember, church, याद रखो कलीसिया, Jesus does not do miracles alone.
यीशु मसीह केवल करिश्मे नहीं करते, He wants us to grow in His love, in His understanding. वो मांगते हैं कि हम उसकी पहचान में और उसके ज्ञान में बढ़ते जाएं। He wants us to grow in His understanding. वो मांगते हैं कि हम उसकी पहचान में बढ़ते So जाएं, that we may get up ताकि हम बाहर निकलें and the work which could not be completed, और जो काम पूरा नहीं हो पाया that would be completed by you guys. वो हम और आप उसको पूरा कर सकें। But I'm sorry to say, church is not taking it seriously. लेकिन आज कलीसियाएं जो है इस चीज को गंभीरता से नहीं ले रही They है, are giving everything to the pastor. वो सारे पास्टर के ऊपर निर्भर कर रहे हैं, Pastor cannot achieve everything. लेकिन पास्टर अकेला सब कुछ हासिल नहीं कर It's सकता। you who can do it. ये काम कलीसिया कर But सकती I'm है, sorry to say, लेकिन मुझे दुख है ये कहते हुए when people come in the church लोग कलीसिया में आते हैं, चर्च में आते हैं, and pastors they try their best to give a good sermon, पास्टर कोशिश पूरी करते हैं कि अच्छे से अच्छा प्रचार करें, then sermon they दें, make happy वो उनको बड़ा अच्छा लगता है सुन के, and the congregation also feels very good. कलीसिया को बहुत अच्छा लगता है प्रचार सुन And के, the congregation say, oh, well done, pastor has given a good और message. कलीसिया पास्टर को शाबाशी भी देते हैं, But बहुत after going from the वो church, कहते हैं बहुत बढ़िया प्रचार था, there is no power in the church. लेकिन बाहर निकल के वो चर्च के अंदर पावर नहीं रह जाती, The Christians are powerless Christians. क्योंकि चर्च जो है कलीसियाएं जो है आज सामर्थ्यहीन कलीसियाएं हैं, They hardly witness anyone during the week. They hardly witness anyone during the week. पूरे हफ्ते वो शायद ही किसी को उत्साह दे पाते हैं या किसी को यीशु मसीह के बारे में बता पाते हैं। Okay, tell me if you have preached someone during this week. यदि आप में से किसी ने भी यीशु मसीह के बारे में किसी से बात की है तो आप Tell बताएं। me if आप मुझे someone बताएं। has witnessed during this week. यदि किसी एक ने भी यीशु मसीह के बारे में गवाही दी है Tell तो me. मुझे बताएं। Even someone who's watching you on the Facebook चाहे वो फेसबुक पे देख रहा हो, can write me वो लिख सकता है आमीन। and yes, pastor, I have done this job during this week. वो कह सकता है कि हाँ यीशु मसीह का प्रचार मैंने इस हफ्ते में किया। People come in the church, लोग कलीसियाओं में आते हैं, they think throughout the week, वो सोचते हैं कि पूरे हफ्ते which dress I'm going to wear on Sunday. Which dress I'm going to wear on Sunday. संडे को कौन से कपड़े पहनेंगे, They think which suit I'm going to wear this और ये सोचते Sunday. हैं कि इस संडे कौन से कपड़े पहने जाए, कौन सा सूट पहना जाए। And when you come in the church, और जब चर्च में आते हैं, it's not bad that you should not look decent. इसका मैं ये नहीं कह रहा कि चर्च में अच्छे कपड़े नहीं पहनने चाहिए या प्यारों के लिए आना चाहिए, You keep thinking what dress I'm going to wear. लेकिन इस चीज के ऊपर मनन करते जाना कि कौन सा कपड़ा, कौन सा सूट, कौन सा शर्ट, But you don't think what is my responsibility. लेकिन ये नहीं सोचते कि मेरी जिम्मेवारी क्या है। And you know when you don't think our responsibility, और जब हम अपनी जिम्मेवारी को नहीं we पहचानते are not being blessed by God. तो हम परमेश्वर से आशीषित नहीं हो पाते। You know a God who did so many things in this world वो परमेश्वर जिसने अद्भुत अद्भुत काम किए इस जगत में through His Son Jesus Christ. अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा, He wants you also to continue the same job वो मांगता है कि जो काम यीशु मसीह ने किए वो काम आज तुम करो, which He left uncompleted, unfinished. जो काम रह गए हैं वो काम आज तुम्हें करने। Who will do it? वो कौन करेगा? You. तुम्हें करने। And you don't do all those good things in the name of Jesus. क्या तुम वो अच्छे काम कर रहे हो यीशु मसीह के नाम से? Doing all these good things, you need to have faith. लेकिन उन अच्छे कामों को करने के लिए तुम्हारे अंदर विश्वास होना चाहिए। I am not very good about faith. मैडम ने बड़ा अच्छा विश्वास के बारे में सिखाया, But in Timotheus, लेकिन तिमोथियस की किताब में in 7 verses, 7 आयतों में he is encouraging Timotheus to continue to have that genuine faith. पौलुस जो है वो तिमोथियस को उत्साह दे रहा है कि तेरे अंदर भी वो निष्कपट विश्वास होना चाहिए। Today I am going to say something very simply about the genuine faith. बड़े साधारण तरीके से उस निष्कपट विश्वास के बारे में कुछ कहना मांगता है। Genuine faith. निष्कपट विश्वास, You know about genuine faith? निष्कपट या असल विश्वास, We have to see a few simple things. हमें कुछ साधारण सी चीजें जो है वो देखनी है। You know, we are going to take, we are going to participate in Holy Communion today. आज हम प्रभु भोज में हिस्सा लेने जा रहे हैं। And you know why? Why? क्यों? Because we simply know that Jesus died for us on the cross. क्योंकि हम ये जानते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए कलवरी की क्रूस पे अपनी जान दी And He became cursed और वो हमारे लिए श्रापित बन गया on my behalf. मेरे खातिर। Have you ever noticed the word curse? क्या आपने कभी इस श्रापित शब्द के ऊपर ध्यान दिया? Jesus Christ became cursed for me. यीशु मसीह मेरी खातिर श्रापित हुआ। Jesus Christ became cursed for me. यीशु मसीह ने मेरे श्राप अपने ऊपर ले लिया और श्रापित हो गया। Wow, man, so great love of God. कितना महान प्रेम है परमेश्वर का। Let's read in 2 Corinthians, दूसरे कुरिन्थियों में आप आते हैं, chapter 5. 5वें अध्याय। He
इस लाइन को पढ़ेंगे हम लोग, verse 21. दूसरा कुरिन्थियों 5 बाब Chapter 5, 5वां बाब 21 verse. 21वीं आयत। So we need to understand before we talk about genuine faith. दूसरा कुरिन्थियों 5:21। See, read it. जो पाप से अज्ञात था ये उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। read it in Punjabi also once again. Loud voice, please. It's written for our sake he made him to be sin. यहाँ लिखा हुआ है कि वो हमारे खातिर पाप बन गया, For my sake. मेरे पापों के लिए। What does it mean? क्या मतलब है इसका? That God laid every sin of mine upon the Lord Jesus Christ. कि परमेश्वर ने मेरे एक एक पाप को यीशु मसीह के ऊपर ला दिया। The curse which I was about to face, Jesus took upon तो himself. जो श्राप मेरे ऊपर था, वो यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा लिया। Read this verse very carefully. पढ़िए इस आयत को बड़े ध्यान से। And then he said, so that in him we might become the righteousness of God. ताकि हम मसीह परमेश्वर की धार्मिकता बन सके। And you know, let's put first thing first. अपन पहली चीज को पहले लेते हैं। I'm repeating it. मैं फिर दोहराता हूँ। First thing first. पहली चीज पहले। Please try to understand. समझने की कोशिश करें। First thing first. पहली चीज को पहले Let me रखें। ask you a question. Let me ask you a मैं question. तुमसे सवाल पूछता हूँ। Okay, I'll ask Brother Raman to get up. मैं रमन से कहता हूँ उठ जाओ। Raman has been preaching during the last couple of days. रमन प्रभु का वचन सुनाता रहा पिछले इतवार पिछले दिनों में। Raman, what are you doing? रमन तुम आजकल क्या कर रहे हो? Give me the mic, please. I'm putting this thing first thing first. पहली चीज को पहले रखते हैं। What are you doing these days? रमन आजकल क्या कर रहे हो? Say it loudly. So what is your priority during the morning time? Okay, he prays first. Okay, he says that I have to go to the job. वो कह रहा है कि मैं अपने काम पे जाता हूँ। And before going to the job, what do you do? काम पे जाने से पहले क्या करते हो? Don't get worried. I'm not taking this. चिंता न करो, मैं कोई सिर्फ नहीं ले रहा हूँ। I just want to tell people first thing first. मैं सिर्फ लोगों को ये बताना मानता हूँ कि पहली चीज पहले होनी चाहिए। You get ready and then you pray and then you. तैयार होते हो? Okay, so what is your priority during the daytime? After praying, after having your breakfast? प्रार्थना करने के बाद, खाना खाने के बाद आपकी क्या प्राथमिकता रहती है? So your work is to do the job. आपकी प्राथमिकता है कि आप तैयार होके वचन पढ़कर जॉब के लिए जाना है। आपकी जॉब प्राथमिकता है उस समय। See now he prays in the morning. आपने देखा कि सुबह प्रार्थना करता है। He takes his breakfast, he gets ready. अपना नाश्ता लेकर तैयार होता है। And then throughout the day he keeps on working at his लेकिन job. बाकी दिन वो काम करता है। So he knows that his first priority is job. लेकिन उसको ये पता है कि मेरी प्रायोरिटी जो है, मेरा प्राथमिकता जो है वो मेरा काम है। See, God made everything on this earth. परमेश्वर ने सब कुछ इस जगत का बनाया। Let me tell you one thing. मैं एक चीज आपको बताना मानता हूँ। The God we worship, जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, He is a perfect God. वो सिद्ध परमेश्वर है। And we are sinful, और हम जो है वो पापी है, separated from God. परमेश्वर से हट है। Jesus is perfect, यीशु मसीह सिद्ध, but He was made sin for us. लेकिन वो हमारे खातिर पाप बन गया। Which means, जिसका मतलब है by believing in Him, यदि हम उसमें विश्वास करें, we receive salvation. तो हमें उद्धार मिलेगा, मुक्ति मिलेगी। And then salvation brings a close relationship with God. और फिर उस मुक्ति के बाद हमारा परमेश्वर के साथ एक बड़ा गहरा रिश्ता बन जाता है। I want it to be understood clearly. मैं चाहता हूँ कि इस चीज को समझा जाए। Salvation उद्धार या मुक्ति brings a very close relationship with God. एक रिश्ता बना देती है हमारा परमेश्वर के साथ। Because we were separated from God. क्योंकि पहले हम परमेश्वर के प्रेम से अलग थे। Now this लेकिन उस क्रूस के द्वारा Jesus laid upon the cross. यीशु मसीह जब सलीब पे चढ़ाया गया, By believing myself in Him, जब मैं उसके ऊपर विश्वास करती हूँ, यीशु मसीह के ऊपर, by believing in His death, जब मैं उसकी मृत्यु पर विश्वास करती हूँ, by believing in His resurrection, जब मैं उद्धार पर विश्वास करती हूँ, this brings me closer to God. तो उसके द्वारा मैं परमेश्वर के साथ जुड़ जाती हूँ, नजदीक आ जाती हूँ। And then this relationship should last forever. और फिर ये जो रिश्ता है, ये एक हमेशा का रिश्ता है। I want to make one thing more clear. मैं एक चीज और
साबित करना मांगता हूँ। from Acts chapter 4, प्रेरितों के कर्तव्य verse 12. 4 बाब Now, this 12 आयत। is especially for them who are still seeking God. प्रेरितों के कर्तव्य 4 की 12। Let me tell you. मैं बताना मांगता हूँ। खोली जगह भाई। no, इधर लो। उम्मीद है ना ये इधर लो। चढ़िया ना उम्मीद टाइम उतना चाहते हैं थोड़ा सा दिखा। Here it is written, यहाँ लिखा है on this earth, इस पृथ्वी पर under heaven, स्वर्ग के नीचे there is no one who can save. कोई भी बचा नहीं सकता। No one can save. कोई नहीं बचा सकता। No one. कोई नहीं बचा सकता। If someone can save you, कोई नहीं बचा सकता। यदि कोई बचा सकता है it's only Jesus Christ. केवल यीशु मसीह बचा सकता I है। want you to read it in Hindi or Punjabi. आप हिंदी पंजाबी में इसको पढ़ लें। किसी दूसरे के अरे द्वारा और दादा ना करो, चंगा नहीं लाता, चमचे चाय बिछी। नारायण को बिछा। जी। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, there is no salvation for anyone else. क्योंकि स्वर्ग के नीचे Under heaven, मनुष्यों में among men, और दूसरा कोई नाम नहीं दिया there गया is no other name which is given जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। through whom we can receive salvation. Very important. ये बहुत अहम बात है कि Very important. किसी दूसरे के नाम के द्वारा उद्धार नहीं है। Read it in Punjabi. आप इसको पंजाबी में भी पढ़ के देख लें। किसी द्वैत तो मुक्ति नहीं The Bible says you cannot find salvation बाइबल in में anyone else. कि मुक्ति किसी और के द्वारा नहीं है, It's only through Jesus Christ. केवल यीशु मसीह के द्वारा। We are not trying to brag ourselves. ये कोई शेखी की बात नहीं है, We are trying to tell from the Bible. ये सिर्फ वचन जो है वो बता रहा हूँ। So I want to repeat once again. मैं फिर ये कहना मांगता हूँ, God is perfect. परमेश्वर सिद्ध है, We are sinful and separated from God. हम पापी हैं और परमेश्वर के प्रेम से अलग हैं। Jesus is perfect and made a way for us so that no longer we be separated from God. यीशु मसीह ने एक मार्ग तैयार किया ताकि कोई भी परमेश्वर से अलग न रहे। Salvation comes through faith in Jesus. मुक्ति जो है, छुटकारा जो है, वो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से आता है। Salvation means our relationship with God, सल्वेशन जो है, उद्धार का मतलब है हमारा परमेश्वर के साथ एक रिश्ता, which should remain forever. और वो रिश्ता जो हमेशा तक रहना चाहिए। Now, in maintaining this relationship, इस रिश्ते को बना के रखने के लिए please listen to me very carefully. आप सुनिए ध्यान से। Very simple, seven things I'm going to say. मैं 7 बातें आपको बिल्कुल साधारण तरीके से बताना मांगता हूँ। If you want to continue to maintain your relationship with God, यदि आप परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता बना के रखना मांगते हैं, I am saying this. मैं क्यों कह रहा हूँ? Many people believe in Jesus Christ. बहुत से लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते हैं, They will come on the platform. वो वेदी के ऊपर भी आ जाते हैं, They will give the testimony very joyfully. बड़े खुशी-खुशी अपनी गवाहियाँ देते हैं, Even they are sitting in the church. चर्च में भी होते हैं, But their mind is not exactly related with God. लेकिन उनका जो दिमाग है, जो उनका मन है, वो परमेश्वर के साथ जुड़ा नहीं है। Once again I'm saying they मैं फिर कह रहा हूँ, come in the church. चर्च आते हैं, They give their testimony too. गवाही भी दे रहे हैं, They speak very joyfully. आनंद के साथ बात भी कर रहे हैं, But their mind is not related with God eternally. लेकिन उनका मन जो है वो परमेश्वर के साथ नहीं जुड़ा है। So first thing I'm going to say 7 points. तो मैं आज 7 बातें बोलने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। Paul encouraged Timotheus. पौल जो है वो तीमुथियुस को उत्साह दे रहा है। You know, Paul was writing this letter from the prison. पौल जो है ये पत्री जो है जेल से लिख रहा है। Remember that Paul is writing this letter from the prison. पौलुस जो है ये पत्री जो है वो जेल से बैठ के लिख रहा है, जेल में बैठ के। Come on, man. आप सोचे, Come on. सोचे भला, He's sitting in jail. जेल में बैठा हुआ है And he's writing a letter for the believers. और यहाँ पर बैठ के वो विश्वासियों के लिए एक पत्री लिख रहा है, He's writing this letter for the pastors. वो पास्टर्स को लिख रहा है। You know, he's in jail. जेल में बैठा है He's counting his last moments. और ये शायद उसका अंतिम समय है, But what is he doing? लेकिन कर क्या रहा है वहाँ बैठ के? Just think about it. कि सोचो इसके बारे में, Think about it. सोचे गहराई से। I want you to think about it. मैं मांगता हूँ कि सोचे इसके बारे में। Sometimes we count our small sorrows as a big mountain. Sometimes we think about small sorrows as a big mountain. कई बार हम छोटे-छोटे चीजों को बहुत बड़ा पहाड़ बना देते हैं, छोटी-छोटी बातों को। This servant of God is sitting in jail. और ये परमेश्वर का संत जो है ये जेल में बैठा है He's encouraging one pastor from the jail. और यहाँ से बैठकर वो पास्टर्स को उत्साह दे रहा है।
that they may continue their walk faithfully with the Lord. ताकि वो विश्वास का जो उनका वॉक है, चलन है, वो परमेश्वर के साथ बना रहे। Once again, I want to say it. एक बार फिर मैं कह रहा हूँ, He is sitting in jail. जेल में बैठा है, He is writing to the pastors. पास्टर्स को लिख रहा है, He is writing to the believers विश्वासियों को लिख रहा है, that they may have their walk faithfully with the Lord for eternity. ताकि वो जो चल रहे हैं वो विश्वास योग्य चाल चले परमेश्वर के साथ। First of all, he encourages him. पहली बात तो उनको उत्साह दे रहा है। You know, he talks about his tears. वो अपने He is talking about his tears. वो अपने आंसुओं के बारे में बात कर रहा He's है। talking about Timothy's tears. वो तिमोथियस के आंसुओं के बारे में बात कर रहा है। You read your Bible. वचन में पढ़े, You read your Bible. आप बाइबल को ध्यान से पढ़े। Timothy was going through a painful process of his life. तिमोथियस भी एक औखे समय से होकर जा रहा था, कष्ट कष्ट से होकर जा रहा था। You read verse 3 and 4. अगर आप तीसरी और चौथी आयत पढ़े, Say, I'm reading 2 Timothy chapter 1. दूसरा तिमोथियस पहला अध्याय, दूसरा तिमोथियस पहला अध्याय, Verse 3 and 4. 3 और 4 आयत। जिस परमेश्वर की सेवा में अपने बाप दादों की रीति पर शुद्ध विवेक से करता हूँ, उसका धन्यवाद हो कि मैं अपनी प्रार्थनाओं में तुझे लगातार स्मरण करता हूँ और तेरे आंसुओं की स्तुति करके रात दिन तुझसे भेंट करने की लालसा रखता हूँ कि आनंद से बढ़ जाऊँ। Now, Paul watches that Timothy is going through some physical ailment. पौलुस ये देख रहा है कि वो एक शारीरिक कष्ट से होकर जा रहा है। He was exhausted. वो थक गया था। He was going through some pain. वो थोड़े से पीड़ा से होकर जा रहा था। And probably he was shedding his tears because of that ailment. शायद उस कष्ट के कारण वो आंसू बहा रहा था। And Paul says, I remember your tears. और पौलुस कह रहा है मुझे तेरे अश्रु जो है वो याद है। Read your Bible. पढ़े बाइबल में। I believe you Christians have not shed your tears the way many saints have shed their tears. मैं ये जानता हूँ कि विश्वास के हमारे कलीसिया में जो बैठे हैं उन्होंने ऐसे अश्रु नहीं बहाए जैसे कि Many saints have done it. जैसे कई संतों ने किया है, As Timothy did it. जैसे तिमोथियस ने किया, As Paul had gone through sufferings. जैसे पौलुस कई यातनाओं से होकर गया। Church, कलीसिया get up. उठो, See these examples. इन मिसालों को देखें। Paul is in prison. पौल जेल में है, पौलुस जेल में है, And he is remembering the tears of his son. लेकिन Timothy. अपने आत्मिक पुत्र के अश्रुओं को याद कर रहा है And he is trying to encourage him. और फिर उसको उत्साह दे रहा है। I want to encourage you this morning. आज मैं आपको उत्साह देना मांगता हूँ। I do it over 8 times. मैं कई बार करता हूँ। Church, you need to get up. कलीसिया आज आपको उठना है, You need to pray about it. आपको प्रार्थना करनी है You इसके need बारे to pray में, about it. आपको प्रार्थना करनी है इसके बारे में, Get up. आपको उठना है, You have to be serious. आपको गंभीर होना है, You have to watch your thinking. आपको अपनी सोच के ऊपर नियंत्रण रखना है And you have to decide what you need to do. और फिर आपको फैसला करना है कि क्या करना है। See here, one man is in prison. यहाँ पर देखो एक भाई जो जेल में बैठा है, From jail, he's watching the tears of his son, Timothy. जेल से वो देख रहा है अपने आत्मिक पुत्र तिमोथियस के आंसू। But then immediately he describes about the faith which he sees in his family. लेकिन उसके बाद ही वो उस विश्वास के बारे में बात करता है जो उसने तिमोथियस के परिवार में देखी। I want to come to the first point. 5वें आयत पे आ जाओ। Yeah. मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की स्तुति आती है Yes. जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में था और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है। See, he's talking about the faith of 3 generations. तो यहाँ पर देखिए वो 3 पीढ़ियों के विश्वास के बारे में बात कर रहा है। It's very, very important to know about this system going on in the families. ये बहुत जरूरी है देखना कि परिवारों में जो चीज चलती है इसके बारे में थोड़ा ध्यान दें। You know, there are curses in the families, परिवारों में कुछ शराब होते हैं, but there are also blessings in the family. लेकिन दूसरी तरफ परिवारों में बरकतें भी चलती हैं। You remember, Madam told about Abraham. आपको याद है कि इब्राहिम के बारे में जिक्र किया There was गया। a family generational blessings in the वहाँ पर एक पीढ़ी से पीढ़ी बरकत चलती आ रही है। in Abraham, इब्राहिम की जो बरकत है पीढ़ियों तक चल रही है। son Isaac, आइजक में, then Jacob, याकूब में, then those 12 sons, फिर वो 12 गोत्रों में, and it goes on. और आज भी चलती जा रही है। And then it has come to us. और आज वो बरकतों के वारिस आज हम हैं। But at the same time, लेकिन उसी तरह से church, you need to remember it. आपको ये याद करना है, सोचना है, If there are blessings one side, यदि एक पासे अगर बरकतें हैं, there are also
drinks. मेरा परदादा जो है वो शराब पीता है, Then the grandfather drinks. फिर जो दादा है वो भी दारू पीता है, Then the father drinks. फिर जो मेरा पिता है वो भी दारू पीता है। If this curse is not broken, अगर इस श्राप को नहीं तोड़ा गया, remember that if this curse is not broken, यदि इस श्राप को नहीं तोड़ा गया, your son will also drink. तो ये श्राप जो है वो अगली पीढ़ी में चला And जाएगा, maybe the son also will drink. और फिर आगे बेटा और आगे उसका बेटा भी उस श्राप को Supposing- वो जारी करता जाएगा। Supposing मान लो there is a great grandfather एक बड़ा दादा है, who is a womanizer, औरतें रखने वाला. औरतें रखने वाला, He is a womanizer. वो गलत काम करने वाला व्यभिचारी है, He has one wife, एक पत्नी है, but besides one wife, लेकिन उस पत्नी के अलावा he also loves other women. वो व्यभिचार भी कर रहा है। He's a great grandfather. ग्रेट ग्रैंडफादर बड़ा दादा भी यही व्यभिचार कर रहा है। And what happens? फिर क्या होगा? It comes with the grandfather. ये आगे पास हो जाएगा, आगे आ जाएगा। Try to listen to me. ये सुनिए बड़े ध्यान से। And grandfather is also a womanizer. वो जो दादा है वो भी इसी प्रकार से व्यभिचारी And होगा। the father is a womanizer. अगर दादा व्यभिचारी है, तो पापा भी व्यभिचारी है. तो पापा के अंदर भी वो कण जो है वो आ जाएंगे। मतलब व्यभिचारिणी के कण आ जाएंगे. और Hello, व्यभिचारी के अंदर church, आ जाएंगे। listen to me, listen to me, listen to me. सुनिए बड़े ध्यान से। If you can, अगर आप बताएंगे grandfather, great grandfather, परदादा, grandfather, दादा, then father, पिता, then probably the son will also continue in the same thing. बेटा जो है उसके अंदर भी वो चीज जो है वो बीज आ जाएंगे। If this curse is not broken, यदि एक श्राप तोड़ा नहीं गया, hello, listen to me. सुनिए बड़े ध्यान से, If you find these kinds of curses in your family, यदि ऐसे कोई श्राप चल रहे हैं I want to say again, पीछे से, these are just two examples I'm ये giving. तो सिर्फ दो चीजों की मिसाल दी है। If these curses are not broken, ये श्राप जो है बहुत किस्म के हैं, then the son will also suffer in the same और way. इनको अगर तोड़ा नहीं गया तो फिर ये सफरिंग, ये सतावट जो है परिवारों में चलती जाएगी। And what will be the result? और इसका रिजल्ट क्या होगा, नतीजा क्या निकलेगा? Hell, नर्क, hell, नर्क। which you don't understand. शायद वो आप समझते नहीं उसकी Because कठोरता। what the Bible says, क्योंकि बाइबल में लिखा है, what the Bible says, वचन क्या कहता है, it will happen just exactly like that. क्योंकि जैसा लिखा है वैसा ही होगा। So today we have an opportunity. आज हमारे पास एक मौका है। Today we can talk about the blessings of faith. आज हम विश्वास की बरकतों के बारे में बात कर Say सकते हैं। everybody hallelujah. Hey, hallelujah. We are not going to talk about curses. आज हमें श्रापों के बारे में बात नहीं करनी है। This was just an illustration. ये सिर्फ एक मिसाल थी, But एग्जाम्पल today we था। are going to talk about the blessings of faith. लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं वो है आशीषें। Continue the same series as what I have taught. उसी जो चीज जो लड़ी चलती आ रही है उसी को आगे मैं बढ़ाता हूँ। Paul is encouraging Timothy about his generational faith. पौल जो है वो तिमोथियस को उसके वो पारिवारिक बरकत के बारे में बात कर रहा है। Generational faith. पारिवारिक जो है विश्वास के बारे में बात कर रहा है। He says your faith is so genuine. तेरा विश्वास जो है वो इतना निष्कपट है। Say again, genuine. Say in English, genuine. In Hindi, nishkapat. हिंदी में निष्कपट, इंग्लिश में जेन्युइन फेथ। It's written in your Bible. बाइबल में लिखा हुआ ऐसे लिखा हुआ है। Paul is encouraging Timothy that your faith is so genuine. पौलुस जो है तिमोथियस से कह रहा है कि तेरा विश्वास जो है वो निष्कपट है। First it was in your grandmother, पहले तेरी दादी में था, then it came in your mother, फिर तेरी माता में आया, then it is in you now. और आज तेरे में है। Do you have that faith? क्या आज आप में वो विश्वास है? If you have, say hallelujah. यदि है तो हालेलुया का नारा If you लगाएं। have that faith, say hallelujah. यदि आपके अंदर विश्वास है, If you don't have, यदि नहीं है, these are things are starting now. तो ये 7 चीजें हैं शुरुआत करने के लिए। In simple faith, in genuine faith, साधारण विश्वास में और निष्कपट विश्वास में you know, the hardest and the biggest thing is what? सबसे औखी चीज और मुश्किल चीज क्या है? The biggest thing. सबसे बड़ी चीज क्या है? To believe in Jesus Christ. यीशु मसीह पे विश्वास करना। To believe in Jesus Christ. यीशु मसीह पे विश्वास करना। Once you believe in Jesus Christ, जब आप यीशु मसीह पे विश्वास कर once you लेते हैं, believe that He died for you on the cross of जब आप Calvary, ये पे विश्वास कर लगते हैं कि वो आपकी खातिर सलीब पे मरा, oh, then your faith starts. वहां से तुम्हारा विश्वास जो है शुरू हो जाता है। Then your faith walk begins. वहां से तुम्हारे विश्वास की जो चाल है, चलना है, वो शुरू होता है। Then your faith walk begins. तुम्हारे विश्वास का जो चलना है वो शुरू हो जाता है। Read with me from John chapter 3 verse 36. यूहन्ना 3:36। Yes. यूहन्ना John chapter 3 verse 36.
आपको ये हवाला समझ में नहीं आता तो घर जाकर If you don't understand this passage right now, जैसे मैं तेजी से बोल रहा हूँ, आपको अगर ये समझ नहीं लग रही, यदि इस हवाले को आप समझ नहीं पा रहे हैं, I request you, मैं आपसे विनती करता हूँ open YouTube, इस YouTube को खोलें, listen to this passage again. इस संदेश को आप फिर से सुने। So in genuine faith, the first thing is believe. तो निष्कपट विश्वास में सबसे पहली चीज जो है वो मानना। Read it. John chapter 3 verse 36. यूहन्ना 6:36। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। Oh. Both things. Both things. दोनों चीजें हैं यहाँ पर। There is a life. एक तरफ जीवन है, There is a death. दूसरी तरफ मृत्यु है। Life for them who believe in Jesus Christ. जीवन उनके लिए है जो यीशु मसीह पर विश्वास कर I रहे हैं। said it earlier. मैंने पहले भी कहा था, This is the hardest and the biggest thing in faith. सबसे जो मुश्किल चीज है विश्वास में वो यही है। And the biggest thing in faith जो सबसे बड़ी चीज है विश्वास में is to believe in Jesus Christ. यीशु मसीह पर विश्वास करना। The moment you believe in Jesus Christ, जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, your new life begins. तो नया जो सृष्टि है, जो नया जीवन है वो शुरू हो जाता है। This life is entirely different from the old perspectives of the world. फिर आपका जो पुराना जीवन है वो बदलने लगता है। This life is different from the worldly वो perspectives. पुरानी जो जीवन है संसारिक दृष्टिकोण से वो बदलने लगता है। Sometimes you enjoy your business. कभी आप अपने बिजनेस का आनंद लेते हैं, Sometimes you enjoy your job. कभी आप अपने कार्य का मजा लेते हैं, Sometimes you enjoy your sports. कभी अपने खेल कूद का मजा उठाते हैं, Sometimes you enjoy gardening. कभी गार्डनिंग में आनंद मनाते हैं, Sometimes you enjoy other recreations. कई बार कुछ ऐसी मन परचावे की चीजें होती हैं जिनमें आप आनंद मनाते हैं। But Christians and the believers enjoy very well. लेकिन यीशु मसीह के जो चेले हैं, पीछे चलने वाले हैं, And I know it. मैं जानता हूँ The joy which is found in believing Jesus जो Christ, आनंद यीशु मसीह पर विश्वास करने से आता है there is nowhere else in the world. वो सबसे ऊपर है। There is nowhere in the world. इससे ऊपर कोई आनंद नहीं है। You have your business, ਤੁਹਾਡੇ को बिजनेस है, you have your job, ਤੁਹਾਡੇ को एक कारोबार है, you have your hobbies, ਤੁਹਾਡੇ को अपने मन परचावे के कई साधन हैं, you have so many things, ਤੁਹਾਡੇ को बहुत कुछ है, but you can't compare your joy with the worldly perspectives. तुम्हारी तुलना दुनिया के बड़े आनंद है उनके साथ कहीं पर भी नहीं है। So here the walk starts. ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਲ ਜੋ शुरू हो गई। What it says? ਇਹਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? Read it in Punjabi. ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਉਤੇ ਨਿਹਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਦੀਵਕ ਜੀਵਨ ਉਸਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਜੋ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ Huh? ਸੋ ਜਿਉਂ ਨਾ ਵੇਖੇਗਾ। Oh, he will not see the light. He will not go to heaven. जो पुत्र को नहीं मानता वो स्वर्ग नहीं देख सकता। Okay, I asked one of the girls. Simply, if you don't believe in Jesus Christ, you don't go to heaven. Where will you go? यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे? Say loudly. ऊंची आवाज में बोलेंगे। I'm glad this girl spoke very rightly. मुझे खुशी है कि इसने सही जवाब दिया। She said, if you don't believe in Jesus Christ, यदि आप नहीं विश्वास करेंगे you don't go to heaven. तो आप स्वर्ग नहीं जा सकते, You go to hell. तो आप नरक में जाएंगे। Are you very serious about it? क्या आप इस बात के बारे में गंभीर हैं? Think about it. क्या आप गंभीर हैं? You need to renew your faith every day. तनु अपना जो विश्वास है वो डेली लगातार उसको रिन्यू नवा करना है. नवा करना है। How? कैसे करेंगे? First is believing. पहला है विश्वास करना, Second is repentance. दूसरा है पश्चाताप करना, तौबा करनी। You know when Peter was preaching in the book of Acts, पतरस जब प्रचार कर रहा है प्रेम करने कर्तव्य chapter 2, दूसरा अध्याय verse 38, 38 आयत here is प्रेम दूसरा अध्याय 38 आयत। it's a kind of another mark which tells you that you have a genuine faith. ये एक वो निशानी है जो ये दिखा रही है कि आपके अंदर निष्कपट विश्वास है। Yes, by repenting. पश्चाताप करके। Hello, by कैसे? say by repenting. पश्चाताप करके, तौबा करके। Say तौबा करके. Say पश्चाताप करके. कहें पश्चाताप करके। Paul is encouraging Timothy that this faith, genuine faith, was in your grandmother. पौलुस कह रहा है कि ये जो निष्कपट विश्वास था तेरी दादी में था, फिर तेरी नानी में था, फिर तेरी माता में आया, आज तेरे में है। How is it? ये कैसे हुआ? Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? First faith, पहले विश्वास, by believing. मानना, Say faith by believing.
मान कर विश्वास करना। Yes. Then faith by turning unto God by repenting. दूसरा है विश्वास करना पश्चाताप करने के बाद। You have to repent and you have to turn unto God. आपको पश्चाताप करना है और परमेश्वर की तरफ मुड़ना है। You have to believe that Jesus died for you. आपको ये विश्वास करना है कि यीशु मसीह आपके खातिर हुआ। And you have to believe that okay, Lord, no more sins now. फिर ये कहना है कि इसके बाद वो पाप जो मैं पहले करता हूँ वो नहीं। So how many marks? One is first mark is what? तो पहला निशान या पहला पहचान क्या है? I said yes. एक विश्वास है, believe करवा, और तो रुकी करवा करना, मन ना करना। मान के विश्वास करना पहली चीज जो है, मान लेना और फिर विश्वास करना। Hallelujah. दूसरा चिन्ह what's the second mark? दूसरा चिन्ह क्या है? दूसरी निशानी क्या है? मन फिराना। मन फिराना। So let me repeat it. मैं फिर दोहराता हूँ। Grandmother repented. नानी ने पश्चाताप किया। Mother repented. माँ ने मन फिराया। Then Timothy repented. फिर तिमोथियस ने अपना मन फिराया। This was a genuine faith. ये निष्कपट विश्वास है। Now number 3 is तीसरी चीज जो है receiving. ग्रहण करना, कबूल करना। In genuine faith, निष्कपट विश्वास में you have to receive. तनु कबूल करना है। Receive what? कबूल क्या करना है? The gift of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का वरदान। You have to receive the Holy Spirit. तनु पवित्र आत्मा का वरदान जो है ग्रहण करना है, कबूल करना है। You know when Jesus was going to die, जब यीशु मसीह मृत्यु से पहले he talked a lot about the Holy Spirit. उन्होंने पवित्र आत्मा के बारे में फिर पूरी से बात की है। Hello, he talked about the Holy Spirit a lot. पवित्र आत्मा के बारे में बात की। Let's read only one verse. हम सिर्फ एक ही आयत देखेंगे उनमें से। Gospel of chapter 14 यूहन्ना की इंजील 4वां अध्याय and verse 16. 16 आयत। Yes. So this is the third mark of genuine faith. ये तीसरा चिन्ह है निष्कपट विश्वास का। First is simply पहला है believing. मानना। Second is repentance. दूसरा है मन फिराना। Third is receiving Holy Spirit. तीसरा है पवित्र आत्मा को कबूल करना, ग्रहण करना। Now we read verse 14 and 26. Sorry. 14 26. Yes. 26। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। Say hallelujah. Hallelujah. पंजाबी में एक बार पंजाबी पढ़ दो। तो हम छवि जो कोई मेरे को आवे और अपने पियो ਅਤੇ ਮਾਂ जो ये नदी की चौड़ा बात छवि और चौड़ा छवि है। अब चौड़ा ये नदी की चौड़ा बात छवि है। यूहन्ना 14:26 आयत। जी। पढ़ो जी। यूहन्ना 14:26। पर वो सहायक तथा प्रसिद्ध आत्मा पवित्र आत्मा जिसमें पिता मेरे नाम से भेजा सो ਤੁਹਾਡੇ सबो कुछ सिखावेगा। सबो कुछ सिखावेगा। You see, once you believe, once you repent, जब एक बार आप मन फिरा लेते हैं, then you have to receive this word. तो फिर आपको ये शब्द जो है ग्रहण करना पड़ता है। Receiving this word means इस शब्द को ग्रहण करने का मतलब है receiving the Holy Spirit. पवित्र आत्मा को ग्रहण करना। And the Holy Spirit will guide you every moment. और पवित्र आत्मा फिर आपकी अगुवाई करेगी हर पल। Don't confuse who is Holy Spirit, what is Holy Spirit. इस बात में आप कंफ्यूज ना होए कि पवित्र आत्मा क्या है, पवित्र आत्मा कौन है। You know, one time a man asked the pastor, एक बार किसी इंसान ने, किसी बंदे ने अपने पास्टर से पूछा, a believer, listen to me this incident. Right? सुने इस घटना के बारे में। One man asked this pastor, एक भाई ने अपने पास्टर से पूछा, I don't understand about the Holy Spirit. मुझे पवित्र आत्मा का समझ में नहीं आता। He said, okay, उसने कहा, मैं बताता हूँ, do one thing, एक काम करो, bring the bomb, but you are a bomb. एक कीड़ा लेकर आओ, Bring the bomb to me, एक बिलोया लेकर आओ मेरे पास, and I will make you the Holy Spirit understand. और मैं तुम्हें समझाता हूँ कि पवित्र आत्मा क्या है। He brought that bomb somehow. वो बिलोया ले आया। Look at me. Most of the people are confused about the Holy Spirit. बहुत से लोग पवित्र आत्मा के बारे में कंफ्यूज They हैं। want to search here and there. वो इधर-उधर उसको खोजते They हैं। ask someone and someone, वो पूछते हैं, लोगों से पूछते हैं, who is Holy Spirit? पवित्र आत्मा कौन है? What is Holy Spirit? पवित्र
पवित्र आत्मा है क्या? So when the pastor asked him to bring the worm, जब पास्टर ने उसे कहा कि वो लेकर आओ वर्म को, he brought that worm. वो लाया उसको। Listen to me. Look at me. Can you tell me what to say? Look well at that. Can you wonder what? Pastor asked पास्टर ने उसे पूछा, to the man, उस भाई से पूछा, tell me, मुझे बताओ, can this worm understand a man? क्या ये गंडोया जो है, ये कीड़ा जो है, क्या ये पर इंसान को समझ सकता है? Can this worm understand a man? क्या ये वर्म जो है, कीड़ा सा जो है, क्या ये बंदे को समझ सकता I है? asked the same question. मैं तुमसे भी ये सवाल पूछ रहा हूँ। Can you understand a man? Can a worm understand a man? क्या एक गंडोया या कीड़ा एक बंदे को समझ सकता है? You all say no. आप सब कहते हैं नहीं। You know, before God, आप जानते हैं परमेश्वर के आगे we are just like worms. हम कीड़े सरीखे, We are just like worms. कीड़े सरीखे इंसान हैं। We try to search from here. इधर से खोजते हैं, We try to search from there. उधर से खोजते हैं। What is the Holy Spirit? पवित्र आत्मा क्या है? Holy Spirit is the third person of the Lord Jesus Christ. पवित्र आत्मा उस त्रिएक परमेश्वर का तीसरा हिस्सा है। One time, a small boy was trying to put some water from the sea to his handmade small dig. एक छोटा बच्चा ने कहा, उसने गड्ढा खोद के समुद्र में से पानी ला के उस गड्ढे के अंदर भर रहा था। And Augustine was going from that place. और संत अगस्तीन जो था उस रास्ते से गुजर रहा था। He asked the boy, उसने बच्चे से पूछा, "What are you doing?" तू कर क्या रहा है? He said that I'm trying to bring this ocean into my small dig. उसने कहा कि मैं यहाँ पर एक उस समुद्र को यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ अपने गड्ढे में। Can you bring ocean to a small dig? क्या आप समुद्र को एक छोटे से गड्ढे के अंदर ला सकते हैं? Can you bring? क्या आप उस पानी को सारा ला सकते हैं छोटे से चप्पड़ में? When the question arises about the Holy Spirit, तो जब पवित्र आत्मा के बारे में प्रश्न उठता है, you have to simply believe तो सिंपली साधारण तौर पे इस चीज का विश्वास करना है। that Jesus said, यीशु मसीह ने कहा, I'm going to the Father, मैं पिता के पास जाता हूँ, and Father will send another helper पिता जो है तुम्हें एक सहायक भेजेगा, who will guide you, who will teach you in everything you do. जो कुछ तुम करोगे उसमें तुम्हारी सहायता करेगा। Say hallelujah. हालेलुया। So tomorrow, तो कल, today, आज, if you are disturbed for any other thing, अगर आप किसी चीज के लिए परेशान हैं, simply pray to God. आप परमेश्वर से प्रार्थना करें I believe in Jesus Christ. कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, Lord, you know that I'm your follower. मैं तुझे पिता कहता हूँ, Send your Holy Spirit to guide me. तू अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा मेरी अगुवाई कर। And I tell you, Holy Spirit will stop you doing wrong things. और पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगी, आपको बताएगी, जताएगी कि कौन सी गलत चीजें आपके अंदर हैं, Or and it will stop you not doing that. और वो आपको रोकेगी वो गलत काम करने से। Say hallelujah. हालेलुया बोले। We got the gift of the Holy Spirit. हमें हमारे सबके पास पवित्र आत्मा का वरदान है। So number one is believing. तो पहली चीज जो है वो मानना, विश्वास करना। Second is repenting. दूसरा है मान फिराना, Third is receiving. तीसरा है पवित्र आत्मा को रिसीव करना। And the fourth is little bit difficult. चौथा जो है वो थोड़ा औखा है, That is surrender your life. वो है अपने जीवन को समर्पित करना। Oh, that's surrendering. वो सबसे औखी चीज है। Say everybody behind me, surrendering. सारे बोले Surrender. अर्पित करना, समर्पित करना। Then let's say in English for surrender. Surrender. Because they understand the meaning of surrender. You know, like people, our police cop can make us understand. Inspector sir, किस तरह का होता है surrender to see? सरेंडर का अर्थ जो है वो पुलिस वाला समझा सकता है कि किस तरीके से सरेंडर होता है। एकदम हाथ खड़े का चलता है। सरेंडर का मतलब होता है कि जब कोई पकड़ा जाता है, When they try to kill some enemy, जब कोई मुजरिम पकड़ा जाता है, they said, we are going to shoot you or उसे surrender. कह दिया जाता है कि तेरे को गोली मार दी जाएगी, या surrender कर दे. या तो तू हाथ खड़े कर दे। What does he do? तो वो क्या करता है? इस तरह भाई वो कैसे अपने आप को समर्पित कर देता है? वो समझा कैसे हवाले करता है अपने आप को? हाथ खड़े कर देना वो हाथ खड़े कर देता है। हाथ खड़े करने का मतलब है surrender. मैं हार गया, खत्म। हालेलुया. हालेलुया। विश्वासियों को रोज surrender करना है. विश्वासियों को रोज परमेश्वर के सामने अपने हाथ खड़े करने हैं। बोलो हालेलुया. हालेलुया। निष्कपट faith is the fourth point is surrendering to God. चौथी चीज जो है अपने आप को परमेश्वर के हाथों में
लगातार समर्पित करना। Let's read one verse. हम एक आयत पढ़ते हैं Luke chapter 9, लूका 9 23-24. 23 और 24। That is the fourth mark of the genuine faith. ये निष्कपट विश्वास का चौथा हिस्सा है। Surrendering. अपने आप को अर्पित कर देना, समर्पित कर Luke देना। chapter 9 verse 23-24. उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा या उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। Read it in Punjabi. पढ़ दो जल्दी ना। उसने अच्छा अच्छा क्योंकि जेड़ा अपनी जान बचाओ चाहे जी वो वचन को गवावेगा जी और जेड़ा मेरे लिए अपनी जान देगा जी वो वचन को बचाएगा। पूरा पढ़ते चलता कोई है और भी की नाम जो अच्छा लूक चैप्टर में थोड़ा फर्क है। So what it says here, यहाँ पर क्या लिखा है? it's written very clearly, यहाँ पर बड़ा साफ लिखा हुआ है, whoever would save his life will lose it. जो अपनी जान बचाएगा वो उसे गवा देगा। It's written here, यहाँ लिखा है, if anyone would come after me, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे let him deny himself. तो वो अपने स्वयं को इनकार करे, Let him deny himself. अपने आप को इनकार करे। I wish my voice, my message goes to the entire Christian world. आज मैं सारे मसीहों को ये संदेश दे रहा हूँ I wish it goes to the entire Christian world. और मैं चाहता हूँ कि ये आवाज मेरी एक जन को जाए इस मसीही दुनिया You में। know, many people are waiting for the miracles. आज हम चमत्कार का इंतजार कर रहे हैं And many pastors, you know what they do? और कई पासवान क्या कर रहे हैं? And they take the hanky वो रुमाल ले रहे हैं, and they do like this, something like a magician. वो रुमाल जादूगर की तरह रुमाल हिलाते हैं Listen to me, hey, do something like this. और वो फूंक मारते हैं And then they put it like this for a woman. और फिर किसी के सिर के ऊपर मारते हैं And then the woman says, I'm revived. The woman says, I'm revived. और वो औरत कहती है, वो बहन कहेगी, मैं जागृत हो गई, And I got new anointing. मुझे मसा मिल गया, मुझे नया मसा मिल And गया। the pastor goes up, he does like this. वो पास्टर रुमाल एक से दूसरे से तीसरे पे And he does the third रुमाल one. हो जाएगा And he does the congregation. And the congregation does like, और फिर वो सारी कांग्रेगेशन एकदम से वो झूमने लगेगी ना। never! I said never! मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं। What Jesus says here, यीशु मसीह यहाँ पर क्या कह रहे हैं? if you want to walk consistently in your Christian walk, यदि आप लगातार अपनी मसीही जीवन में चलना मांगते हैं, you have to deny yourself. सबसे पहली चीज जो है वो अपना इनकार करना, You have to surrender yourself to God. समर्पित करना है परमेश्वर के हाथों में। Daily, रोजाना not only on Sunday by having one hanky. सिर्फ रुमाल हिलाने से कुछ नहीं हो जाएगा। Only on Sunday one hanky. रुमाल घुमाने से कुछ नहीं होएगा। If it happens with the hankies, यदि रुमाल घुमाने से कुछ हो जाए, and there was no need of Jesus to write this verse तो here. यीशु मसीह के लिए ये आयत यहाँ पर लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। Jesus says very clearly here. यीशु मसीह साफ यहाँ पर कह रहे हैं। Read it. What is written? आप पढ़े यहाँ पर क्या लिखा है? It's written, and he said to all. और उस Said to all. यीशु मसीह ने कहा, He said to all. सबसे कहा, He said to all. सबसे कहा। Hello, church, careful, be सुनो careful. कलीसिया, ध्यान से सुनो इस चीज को। He said to all. उसने सबसे कहा, He said, उसने कहा, I tell you, if anyone would come after me, यदि कोई मेरे पीछे हो ले, let him deny तो himself अपने स्वयं का इनकार करे and take up his cross daily और अपनी सलीब को रोजाना उठाए and follow. और मेरे पीछे हो ले। You know, I don't know take name of anyone, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, but I know several people पर मैं जानता हूँ बहुत से लोग who are taking their cross daily. जो अपनी सलीब रोजाना उठा रहे हैं, चुप रहे हैं। Well, say hallelujah. हालेलुया बोलो। There are certain people who are taking their cross daily. बहुत से हैं जो अपनी सलीब को रोजाना उठा रहे हैं। Cross means क्रॉस का मतलब, क्रूस उठाने का मतलब क्या है? you have to bear shame, तुम्हें लज्जा उठानी पड़ती है, you have to go through difficulties. कई औकड़ों से होकर जाना पड़ता है, ओके You टाइम से होकर जाना know पड़ता है। what cross means. तुम्हें पता है सलीब का उठाने का मतलब क्या है? Jesus tolerated every problem. यीशु मसीह ने Every sorrow. सब कुछ बर्दाश्त किया। He was despised by hundreds and thousands. हर लानतें, तोहमतें, सब कुछ सह ली। And eventually and finally he said, Father, और अंत forgive me. में आकर उसने
for they don't know what उसने they यही are कहा doing. कि पिता इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। Say everybody hallelujah. हालेलुया बोलो। What are the 4 marks which I taught today? क्या 4 चिन्ह हैं For genuine faith. निष्कपट विश्वास के? For genuine faith. निष्कपट विश्वासी होने के क्या 4 चिन्ह Number हैं? 1. पहली चीज मानकर विश्वास करना। Number 2. दूसरा Okay. मन फिराना। Number 3. तीसरा पवित्र आत्मा। Number 4. Now, I want policemen. चौथा सरेंडर करना, समर्पित करना। Hallelujah. हालेलुया। I will stop it here. मैं यहीं पर ही रोकता हूँ। Next 3 points I will share next. जो अगले 3 पॉइंट्स हैं वो आगे मैं जारी करूंगा Because we are ready for the Holy Communion. क्योंकि आज प्रभु भोज भी है। Let's close our eyes आंखें बंद करें and we'll pray. और प्रार्थना करते Pray हैं। within yourself. अपने आप से प्रार्थना करें। These 4 points. इन 4 जो चिन्ह आज बताए गए हैं इनके ऊपर आप ध्यान से सोच कर प्रार्थना करें। Pray about it. इनके बारे में प्रार्थना करें। Lord, there was a faith in Timothy's grandmother. प्रभु एक विश्वास था जो तिमोथियस की नानी में था। Then there was a faith in his mother. फिर वो विश्वास उसकी मां में आया And this faith was passed on to me by you through my mother. और फिर वो विश्वास तिमोथियस के अंदर आया। You need to pray. आज हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। If you lack faith, यदि आपके अंदर विश्वास की कमी है, you know, I'm preaching. मैं इस चीज का प्रचार कर रहा हूँ। I see the churches. मैं कलीसिया में देख रहा हूँ। I see in my own church. मैं अपनी भी कलीसिया में देख रहा They हूँ। are opening their eyes. वो अपनी आंखें खुली रखते हैं। They are looking here and there. वो इधर उधर अपने सपनों में अपने गुआचे। They don't understand what was said today. उन्हें शायद ये समझ में नहीं आया कि आज क्या बताया गया। They don't try to ask the pastor what did you preach pastor today. एक बार पूछते भी नहीं कि पास्टर जी आपने क्या आज सिखाया था। The moment the church is finished, जैसे ही चर्च खत्म होएगा, they will be busy in sweet gospel. वहीं पर ही चुगलियाँ, ठट्ठे मजाक शुरू हो जाते हैं। Even in the church. इवन कलीसिया में भी। That's why I took off all the mobiles today. इसीलिए मैंने आज सबके मोबाइल जब्त कर लिए। You need to be serious. आपको बहुत गंभीर होना पड़ेगा। You want blessings from God? यदि आप परमेश्वर की आवाज को सुनना मांगते हैं, You want blessings from God? यदि आप आशीषें मांगते हैं, Or you just want to spend your life just like this? या अपनी जिंदगी को ऐसे ही गुजारना मांगते हैं, It's your decision. ये आपको फैसला करना पड़ेगा। But if you decide यदि आप फैसला करेंगे and you follow these 4 points which I shared और आप today, इन 4 बातों के ऊपर मनन करेंगे and next week I'm going to finish it, और अगले हफ्ते मैं इस बात को खत्म करूंगा, I assure you, मैं विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ, your faith also be counted in the books of the Lord. तो तुम्हारे लिए जो विश्वास है वो परमेश्वर की जीवन की पुस्तक में उसका जिक्र होगा। Let's pray. प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ। आज आपने हमें बताया कि तिमोथियस की पत्री में कि किस प्रकार से पौलुस ने उसको उत्साह दिया, कि उसने जेल में से उसके आंसुओं को याद रखा, जो बीमारी में से बहते थे, दुख में से बहते थे, वो डिस्करेज हो जाता था, लेकिन पौलुस ने उसको उत्साह दिया और फिर प्रशंसा की कि वो विश्वास जो उसकी नानी में था, उसकी मां में था, वो तिमोथियस में भी आकर बैठे और उसी विश्वास से उसने सेविकाई को संभाला। तो मुझे मेरी प्रार्थना, हाथ जोड़ प्रार्थना है, हम सब में विश्वास को ऐसा ही करें और अपने बच्चों के लिए एक मिसाल बन जाए, जिसे पिता आपका बेटा यीशु मसीह में मांगा है और शैतान से विदा हो जाए। तो यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं।